Hello, good morning, FI Become student. Hello, Good morning, ma'am. good morning. What did we Good discuss morning, in the ma'am. last week? What did we Good morning, discuss ma'am. in the last? Good morning. What did we discuss in the last week? What did we discuss last week at BCBC? I think reflective question, clarifying question ये मैंने आपको बताया था. Yes or no? First chapter is over ना? First chapter is over. Now we will discuss that types of interview. Types of interview. Yes or no? टेलीफोन इंटरव्यू वगैरह. हाँ या ना? हाँ या ना? Okay, let's start. That now we will discuss the telephone interview. ये तो मैंने किया था शायद. Now next point is online interview. Do you listen me? Am I audible? Am I audible, all of you? Yes. Okay. Yes. Online interview. Online interview means what? More and more companies are conducting online job interviews. These interviews save the employers money because they do not have to pay for the job fare or candidates and to travel to the office. In addition, the technology needed to conduct the online interview has become the mainstream. So it is a simple and effective way to interview the candidates for the employment. So most probably, most probably, now am I audible? Am I audible to you, all of you? Yes. Huh. Now, what we are discussing online interview. Yes, ma'am. On most probably in the offices, online interviews are taking, or online interviews are conducting. For candidates, online interview is much better because it saves the time. कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर कैंडिडेट समय पे नहीं पहुंच पाता तो समय पे ना पहुंच पाने के लिए या कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो जिसके लिए ऑनलाइन इंटरव्यू रख देते हैं और जब एक ऑनलाइन इंटरव्यू रखा जाता है तो वो कैंडिडेट के लिए क्या हो जाता है टाइम सेविंग हो जाता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर बिफोर योर इंटरव्यू और वेब इंटरव्यू. ये हमने देखा था. ये हमने देखा था. कौन सा पॉइंट था लास्ट? लास्ट कौन सा पॉइंट था? कौन सा Ma'am, पॉइंट था? impact of globalization of industry. मैं बीसी की बात कर रही हूँ. एफसी नहीं. बीसी का बात कर रही हूँ. आज बीसी है. बिजनेस कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको. बिजनेस कम्युनिकेशन. कौन सा पॉइंट था? आई थिंक मैंने ऐसा आपको बताया था कि बिफोर इंटरव्यू और वेब इंटरव्यू हमको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए ये आपको मैंने बताया था. यस और नो? ओके. द नेक्स्ट Yes, पॉइंट इज ma'am. टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. ये हुआ था कि वो नहीं हुआ था? टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. टाइप्स ऑफ इंटरव्यू ये लिया था. इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ये वगैरह हुआ था. डू यू Yes, रिमेम्बर? ma'am. हाँ, डू यू रिमेम्बर कि कौन सा पॉइंट था? कि फॉर एग्जांपल इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. ओके. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट. That interview for selection. Much of what has been said in foregoing section pertains interview for selection. The methods of conducting such interviews and techniques adopted have already been described. The theme to remember is that the interview for selection are held for three reasons: to find out the applicant for suitable job vacancy, to give information and to applicant about his work and organization, to create a goodwill. So these are the things why the interviews are going to be held. There are the three reasons: to choose the proper candidate, to give the proper information about the organization to the candidate, and third point is to create the goodwill or the good image of the organization. Do you understand? Do you understand?
Yes or no? Do you understand or not? Okay. Then Yes, second ma'am. point, write down the points. Write down the points. टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में सबसे पहला आता है इंटरव्यूज फॉर सिलेक्शन, दूसरा आता है अप्रेजल इंटरव्यूज, अप्रेजल इंटरव्यूज, उसमें भी सब पॉइंट्स हैं। तो फ्रॉम मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, from manager's point of view and from employee's point of view. These are the two points in appraisal interview. Now we are going to discuss about the appraisal interview. In the appraisal interview, that usually held the once year, superior officer reviews the subordinate performance, future plans, personal prospects. If properly held, such interviews help to improve the efficiency and the motivation of the employee, train him for occupying the post involving greater responsibility, and help to improve the relations and communication between the managers and subordinates. तो अप्रेजल इंटरव्यू कब रखा जाता है? द अप्रेजल इंटरव्यू इज गोइंग टू बी हेल्ड विद इन द ईयर और वंस अ ईयर, साल में एक ही बार होता है। दैट समटाइम्स द सुपीरियर ऑफिसर रिव्यू द सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट परफॉर्मेंस के वो किस तरह से क्या है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, पर्सनल प्रोस्पेक्ट क्या है, तो उसकी वजह से अप्रेजल इंटरव्यू रखा जाता है। और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मीन्स सबॉर्डिनेट, हम बोलते हैं कि सबॉर्डिनेट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये इंटरव्यू रखा जाता है। डू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, आगे का बात करते हैं। देन फ्रॉम मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम मैनेजर्स पर्सपेक्टिव, तो उनके हिसाब से अप्रेजल इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, तो उनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है द मैनेजर सक्सेस डिपेंड ऑन हाउ वेल एन एम्प्लॉई कैरी आउट हिज और हर टास्क, that appraisal interview enables the manager to fulfill his or her leadership role. तो मैनेजर की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि मैनेजर की जो सक्सेस है, दैट मैनेजर सक्सेस डिपेंड ऑन हाउ हिज एम्प्लॉय वर्क, कि उसका एम्प्लॉय किस तरह से काम करते हैं उस पर उसकी डिपेंड रहती है। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है या फर्म चल रहा है, फर्म चला रहे हैं, तो किसी एक आदमी से फर्म चलता नहीं है। उनके लिए सभी यूनिटी की या इंटीग्रिटी की जरूरत होती है, सभी एम्प्लॉय साथ रह के काम करते हैं तभी वो काम होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? हेलो? Yes, ma'am. Are. हाँ। देन दूसरा पॉइंट है कि उसमें और एक उसमें 4 पॉइंट है, उसमें बताया है एग्रीज ऑन द गोल्स विद एम्प्लॉय, therefore providing the employee with the direction to go. Suppose sometimes employees put the suggestion, put the suggestion for goals or something like that. So at that time the manager has to be agree. Then facilitate the important information regarding university and organization unit. So it is the duty of the manager to provide the proper information to the candidate or to the employee according to the university or according to the organization. The next point is evaluate the goal together with employee and conduct the casual research. So what is the reason? Evaluate the goal कि सपोज हर एक जो बंदे का काम करने का तरीका है वो कैसा होता है, अलग होता है। सो इवेल्यूट द गोल और डिवाइड द वर्क विद इन द डिफरेंट एम्प्लॉयज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पॉइंट्स लिख रहे हैं ना? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. The next point is receive the information regarding himself, his employees and organizational unit, mutual exchange of the expectation. तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको क्या करना चाहिए मैनेजर को, रिसीव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन और रिसीव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिमसेल्फ, उसको क्या एक्सप्लोर करना है, एम्प्लॉय तक कैसे आपको पहुंचाना है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। And assist and promotes his or her employees. Always motivates your employees so at least they can do their work in a much better way. So these are the points which are given by manager's perspective कि ये
तरीका है काम करने का। अभी एम्प्लॉय का तरीका क्या है? फॉर एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, an employee's success and career depend on how well and she develops his skill and competencies, performance and job satisfaction, as well as how well he and she prepares for the possible future tasks, न्यू रिक्वायरमेंट। तो एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव वे से क्या हुआ कि वो उसकी सक्सेस किस पर डिपेंड रहती है कि वो किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से अपना स्किल डेवलप करता है, अपनी कॉम्पिटेंसीज कैसे डेवलप करता है, अपना परफॉर्मेंस कैसे देता है, और उसका परफॉर्मेंस देते हुए उसको जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि कभी कभी हम दिखता है एज अ ह्यूमन बीइंग कि बिकॉज ऑफ द ओवरलोड वर्क वी गेट बोर, am I right? We get bored कि कभी कभी हम बोर हो जाते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल जब आपको मंडे टू सैटरडे जब लेक्चर दिया जाता है तो संडे को आपको छुट्टी दी जाती है, यस और नो? संडे को छुट्टी होती है, Yes, यस ma'am. और नो? बीच बीच में आपको छुट्टियां होती हैं कि फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट का रूल है कि आज छुट्टी है, कि फॉर एग्जांपल गांधी जयंती है या हम बोलते कि पर्टिकुलर 26 जनवरी या 15 अगस्त, ये इस में छुट्टियां होती है और संडे को छुट्टी होती है। अगर संडे को भी हम कॉलेज स्टार्ट रखें या हम बोलते कि स्कूल चालू हो तो आपको क्या हो जाएगा? यू आर गेटिंग बोर्ड ना, you are Yes, getting ma'am. bored. So because of the relaxation that you need rest. So यहाँ पे क्या बताए कि कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि एम्प्लॉय जो होता है साल भर काम करता है लेकिन उसको थोड़ी सी भी छुट्टी ना मिले तो क्या हो जाएगा? वो अपने काम में ठीक से अपने ध्यान लगा पाएगा, अपने काम में ठीक से ध्यान लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। So that is the thing. Then next point is receive the feedback on his her performance। अगर एम्प्लॉय काम करता है तो उसकी ड्यूटी क्या है कि उसकी ड्यूटी क्या है कि हाँ शायद पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हो पर उसको लेनी चाहिए। अगर नेगेटिव फीडबैक हो तो उसको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उसको हर्ट नहीं, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि मैं और अच्छी तरीके से किस तरह से काम करूँ। Then next point is receive the information regarding organizational unit। तो जब भी कोई नया एम्प्लॉय होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे मीन्स हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का ये इंफॉर्मेशन निकालना किसका काम होता है? एम्प्लॉय का काम है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम किया जाता है। ओके, डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अप्रेजल इंटरव्यू clear? Is it clear? Hello, Ma'am. is it clear to Yes, you? ma'am. If you are not, Yes, ma'am. if you are not answering, then how can I understand? बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? ओके, आगे देखते हैं। Then next point is number 3, under stress interview। Write down the title, under stress interview। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू, दिखाई दे रहा है, यस और नो? हेलो, can you see the slide properly? हेलो, हेलो, दिखा क्या? पायल, Yes, दिखा? ma'am. दिखा क्या? आपको दिख रहा है? Yes, स्लाइड दिख ma'am. रही है? स्लाइड दिख रही है? तुमचा आवाज नाही येत आहे मॅडम. स्लाइड दिख रही है? स्लाइड दिख हो रही आवाज ब्रेक होतोय. है? जस्ट मिनट, स्लाइड दिख रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, येस मॅम. यहाँ पे देखिए अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू। इन अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू विथ एप्लीकेंट इज पुट अंडर intentional stress so that his reaction can be observed। Such as interview is the base conducted by the panel of interviews। Under stress interview can be very unpleasant experience for the candidate, hence it should be undertaken with a great care and caution। Moreover, there are only certain types of the post for which this kind of the test has been validity। Usually, the post is managerial nature, which involves
sport decision or decision to be taken under very difficult and trying circumstances. The posts for which these interviews are suitable are those of the manager, factory supervisor, and also college teachers and principals. Okay, so under stress interview, at least you can little bit understand that the title is given. Under stress interview is particularly held for teachers, for college teachers, principals, managers post, factory supervisors, because this particular type of interview is given to check out their mental condition, how they are going to manage the circumstances in the future. If the circumstances are difficult in the future, at that time, can they handle it properly or not? For this purpose of point of view, that this kind of interview is going to be taken. Do you understand? Do you understand? Yes or no? समझ में आ रहा है? समझ में आया? Yes or no? समझ में आया? उमेरा, तंजिला, समझ में आ रहा है? Yes or no? Do you understand all of you? Yes or no? Hello? No, ma'am. You can't understand? No, ma'am. No ma'am, आवाज ब्रेक होतो. अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू का घेतलं जातं? क्यों लिया जाता है? अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाँ येतोय आवाज. Yes ma'am. हाँ, अंडर स्ट्रेस हाँ। इंटरव्यू इसके लिए लिया जाता है कि वो पर्टिकुलर कॉलेज टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लिया जाता है, कि मैनेजर्स के लिए, फैक्ट्री सुपरवाइजर के लिए ये इंटरव्यू लिया जाता है कि ये सिचुएशन में उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज करके, या हम बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट टास्क उनको दिया जाता है। डिफ़िकल्ट टास्क मीन्स ऐसे ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि शायद वो किस तरह से उस सवाल को या उस सिचुएशन में उसको हैंडल करते हैं, इसकी वजह से अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू लिया जाता है कि इसकी वजह से उनकी जो मेंटल एबिलिटी है कि हम सर्कमस्टांसेस में किस तरह से रहते हैं और उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, इसकी वजह से अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू लिया जाता है। अंडरस्टैंड? अभी समझा? अभी समझा? डू अंडरस्टैंड? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल ना प्रॉपरली? Yes, ma'am. आवाज Yes. ब्रेक हाँ होतोय. मैम अब आवाज ब्रेक ब्रेक होतो. होतोय आवाज. मॅम, आवाज ब्रेक होतोय. द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेवियस इंटरव्यू। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है? Yes, ओके। Yes, ma'am. ma'am. When human beings interact, there are bound to be grievance and complaints. A worker may have the grievance against his fellow workers or superior officer. The supervisor may have the grievance against his subordinates who do not carry out his instructions properly. If these grievances are allowed to get the bottle up, the whole atmosphere in the place of the work would get affected. The grievous interviews serve the purpose of allowing workers and employees to blow off some steam, that any dissatisfaction raised formally through the grievance procedure needs to be taken seriously. If employees feel sufficiently strongly about an issue to use the formal processes, this is an indicator of the seriousness of the situation from employees' perspective, and they have the right of fair and respectful hearing. Issues raised informally should also be taken seriously to reduce the use of the formal process. The grievance interview requires the manager holding hearing to use the range of the skill. The skill required to conduct
and effective grievance interview are common to the other types of interviews that interviewers should undertake too. So grievous interview के grievous मतलब क्या? Complaint. तो grievous interview क्यों लिया जाता है? Suppose the workers have any complaint about any workers, fellow workers, or the superior officer. Suppose the superior officer will be there. He has the complaint about his subordinate. Means that suppose sometimes he gives the instruction and his subordinates do not follow the instruction. So this kind of the interviews are going to be held, and whenever this kind of the interviews are giving a more importance, means it affect the atmosphere of the organization. कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर एग्जांपल जब हम कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है, और जब हम कंप्लेन करते हैं क्या होता है, क्या होता है कंप्लेन करने से? हेलो, डू यू लिसन मी? एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्लेन कर दे तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर कैसा है कि एक बार एक जैसे ही हम जब कंप्लेन करते रहते हैं एक व्यक्ति के लिए, तो फिर क्या होता है? एटमॉस्फेयर कैसा होता है कि घर में भी हम जब एक जैसे कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है? घर का माहौल ठीक होता है क्या? घर का माहौल ठीक रहता है? नहीं, no, ma'am. नहीं रहता है. So that is the thing. It will affect the atmosphere of the organization. अगर इसका फॉर्मल प्रोसीजर होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कंप्लेन करना है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर आपको कंप्लेन करना है तो उसका फॉर्मल प्रोसेस होता है कि ये फॉर्मल प्रोसेस आपको क्या बताता है कि एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, एम्प्लॉय क्या फील कर रहा है, अगर उसको कोई इश्यूज है तो वो ये फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू वो कंप्लेन कर सकता है कि उसकी सिचुएशन को समझे. इसकी वजह से उसको ग्रेवियस इंटरव्यू बताया जाता है कि उनके लिए कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर कंप्लेन करने जा रहा है, कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करने जा रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति उसके मैनेजर के पास जाता है और सुपरवाइजर के पास जाता है तो उसको सुनना चाहिए, यही उसकी सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है. एंड इफ द इश्यूज are raised informally should also be taken seriously to reduce the formal processes. कि किसी लोगों को या बारी बारी जाके ऑफिस में जाके या मैनेजर के पास जाके बारी बारी जाके उसको कंप्लेन करने की आदत होती है, तो ये जो बातें होती है वो जरा हम बोलते कि फॉर्मल प्रोसेस में होनी चाहिए. या सबको उसका नेचर पता है कि हाँ अभी ये बोला है तो जाके कंप्लेन करेगा, ये बोला है तो जाके कंप्लेन करेगा. इसकी वजह से क्या होता है कि जितना आप ज़्यादा कंप्लेन करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, आपका इमेज कैसा होता है? खराब होता है. एम आई राइट? कि जितना ज़्यादा आप कंप्लेन करेंगे उतना इमेज कैसा होगा? Yes, ma'am. खराब होगा. ओके, तो क्या बेटर है? मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि कंप्लेन नहीं करना चाहिए. दैट इज़ योर इमोशनल अटैचमेंट ऑल्सो कि इफ़ यू फील समथिंग बैड और आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो लेकिन उसकी वजह से आप फॉर्मल प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ घर के जैसे तो हम झगड़ा नहीं कर सकते. एम आई राइट ना? घर के जैसा हम झगड़ा वहाँ Yes, पे ma'am. नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फॉर्मल प्रोसेस होती है, तो इसकी वजह से ग्रेवियस इंटरव्यू लिया जाता है. डू यू अंडरस्टैंड राइट नाउ? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. Yes, ma'am. अभी उसके लिए क्या करना चाहिए? इंटरव्यूअर शुड अंडरटेक टू. तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है प्रिपेयर. द ग्रेवियस इज इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉई अपार्ट फ्रॉम द केयरफुली रीडिंग एंड फॉर्मल ग्रेवियंस एंड गैदरिंग रिलेवेंट फैक्ट्स. देन मे बी द लिटिल मैनेजर कैन डू प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. कि जब इंटरव्यूअर्स मीन जो इंटरव्यू लेता है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैनेजर बैठा है या सुपरवाइजर बैठा है तो उसको क्या करना चाहिए? मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अभी ये जो कंप्लेन आने वाली है तो वो कौन देने वाला है? एम्प्लॉय देने वाला है. तो उसको वो फॉर्मल प्रोसेस में कि फॉर एग्जांपल वो रिटर्न फॉर्मेट में हो तो उसको केयरफुली रीड करना चाहिए. उसके रिलेवेंट फैक्ट कि सही है या गलत है या ऐसे ही कंप्लेन किया है उसके बारे में जानना चाहिए. However, the manager should be mindful of setting precedent regarding the decision, and therefore it is important that any manager is fully familiar with all the relevant policies, procedure and practices associated with the issue under the discussion.
तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब मैंने पहले ही बोला कि मैनेजर को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि कोई भी जब डिसीजन वो लेने वाला है कि अगर किसी ने कंप्लेन किया है तो वो डिसीजन लेगा, तो वो डिसीजन किसी के लिए बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए कि उसको पूरा का पूरा फैमिली मीन्स बैकग्राउंड पता होना चाहिए या रिलेवेंट पॉलिसी उसको पता होना चाहिए, उसके प्रोसीजर पता होना चाहिए, उसके प्रैक्टिसेस क्या है, जो इश्यूज होते हैं तो वो उसकी प्रैक्टिसेस कैसे हैं, उससे क्या जुड़ा हुआ है, उसकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई खून होता है या हत्या होती है तो उसका जो सुराग हम बोलते हैं कि पुलिस निकाल लेती है ना कहीं से वो सुराग निकाल के लेती है कि नहीं, इट टेक्स अ टाइम। Yes, ma'am. हाँ, वैसे उसके पास होना चाहिए, उसके पास एविडेंस होना चाहिए, उसके पास प्रूफ होना चाहिए, इश्यूज क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, वो सब बातें उसको पता होनी चाहिए। और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको अनबायस डिसीजन देना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट फिजिकल एनवायरनमेंट। द ग्रेवियस इंटरव्यू शुड बी हेल्ड इन द प्राइवेट, therefore the room where the hearing can be held without interruption and should be made available. This indicates that the grievance is being taken seriously. The employee should be notified the date, time and place. तो क्या बताना चाहिए आपको, वहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट फिजिकल एनवायरनमेंट। कि सपोज कोई व्यक्ति कंप्लेंट करने जाता है तो उसके लिए पर्टिकुलर रूम होना चाहिए कि रूम में कोई भी डिस्टर्ब करने वाला उसके लिए कोई भी होना नहीं चाहिए, कि जिसकी वजह से क्या होता है, इट इंडिकेट द ग्रेवियंस इज बीइंग टेकन सीरियसली। उसकी बात को ध्यान से सुना जाए और उसकी बात को ध्यान से परखा जाए। समझ में आया? समझ Yes, में आया? ma'am. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज लिसन टू हियर or what is being said by aggrieved individual. The grievance interview is the common with all interviews, require good active listening skill to be displayed. The interview should be made to feel at ease so that he unburdens himself. This includes that appropriate body language, good eye contact to be maintained if the employee is to be reassured that the issues is being listened to एंड हर्ड फेयरली। तो आपको क्या बताया गया है कि जो एम्प्लॉई, जो इंडिविजुअल है, जो कंप्लेन करने वाला है, कि फॉर एग्जांपल कंप्लेन करने वाला है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो इंटरव्यू लेने वाला है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका लिसनिंग स्किल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। कि इंटरव्यू लेते हैं तो कैंडिडेट को ऐसा लगना चाहिए, कंफर्टेबल जोन में वो कैंडिडेट को ऐसा लगना चाहिए कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो सुन के लेंगे। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं तो उसका बॉडी लैंग्वेज, दोनों का बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट ठीक होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि कभी कभी हम सोचते कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हम सब बात कर रहे होते हैं या कोई व्यक्ति हमें इग्नोर कर रहा होता है तो हमें समझ में आता है कि नहीं आता है? समझ में आता है ना? अगर हमारी बात पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमें समझ में आता Ma'am. है कि नहीं आता है? यस और नो? एट दैट Yes, टाइम ma'am. हाउ डू यू फील? एट दैट टाइम हाउ डू यू फील? आपको कैसे लगेगा? आपको कैसे लगेगा? थोड़ा बुरा लगेगा कि वो अपनी बात नहीं सुन रहा है इसलिए. हाँ, सुन रहे, because it is the human nature. If you are listening, if you are paying attention, if your eye contact is proper, then the person should like to talk with you. Then the person should like to listen you. कि आप जब उसकी बात सुन रहे होते हैं तो उसको लगता है कि हाँ ये मेरी बात पे गौर कर रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, अच्छा होता है, कन्वर्जेशन कैसा होता है, अच्छा होता है। समझा? समझा? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then next point is be good in communication skill. That the success of the grievance interview depends almost entirely on the communicating skill of the interviewer. तो इंटरव्यूअर का जो जितना भी कम्युनिकेशन स्किल होता है ना उस पर ग्रीवियस इंटरव्यू डिपेंड रहता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीवियस इंटरव्यू मीन्स
कि जो लेने वाला है, कि फॉर एग्जांपल आप कुछ कंप्लेन लेके आए या मैं कुछ कंप्लेन लेके आपके पास आए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप सुनने वाले कैसे होने चाहिए? मच बेटर ना, मुझसे मच बेटर होनी चाहिए कि नहीं? मुझसे मच बेटर होने चाहिए ना। आपका कम्युनिकेशन स्किल यस मैम। और आपका Yes, लिसनिंग स्किल ma'am. कैसा होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं कि जब हम झगड़ा होता है घर में, या जब झगड़ा होता है दो दोस्तों के बीच में या वगैरह, तो एक जो शांत बैठा है, इट डजंट मीन कि उसको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन क्या होता है ज़्यादातर, क्या होता है कि आप वर्ड्स फेंक रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी फेंक रहे हैं, उसके भी पास से नेगेटिव एनर्जी आ रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे उस टाइम शांत रह गए, तो आपको उसकी भड़ास निकलते हुए दिखाई देगी। वो क्या फील कर रहे हैं उसकी वो फील करेंगे। लेकिन जब आप सामने सामने उत्तर दे रहे हैं, सामने सामने बोल रहे, तो क्या उसकी आपके फीलिंग दिखाई देगी या आपकी फीलिंग उसको दिखाई देगी? दिखाई देगी? यस और नो? नहीं। नहीं दिखाई देगी। No, क्योंकि ma'am. क्या होता है कि जो आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल मीन्स जो इंटरव्यूअर होता है, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए? बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, बहुत ही पेशेंस वाला होना चाहिए, फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाए। समझ में आया? ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाए। Yes, ma'am. Okay. The next point is ask the appropriate question in the appropriate way. Questioning is an essential so that the manager can understand the nature of grievance and how aggrieved feels about it. The nature of the complaint must be fully explored, and this needs careful probing so that all the facts are identified and clarified. The question should be asked in calm and non-threatening way to encourage the employee to speak openly without feeling it will disadvantage the case. It is the valuable to identify the outcome that aggrieved person is seeking, because it is not an uncommon for the situation to require negotiated settlement. Compromise may be only way the forward. अभी यहाँ पे क्या बताया है? Appropriate question should be asked in appropriate way. Okay. Suppose the position is given to you, whether you are going to take on, means suppose you are going to take on the interviews, grievance interview, your listening skill should be powerful, must be powerful, your communication must be powerful. So at that time you can't ask any vulgar question to the employee. कि फॉर एग्जाम्पल जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको वल्गर क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछना चाहिए। कि क्वेश्चन हमेशा किस तरह से पूछना चाहिए? शांत प्रकार से, कि जो डरावने ना हो। लोगों ऑलरेडी जो कंप्लेन करने के लिए आता है, वो एक थोड़ा सा उसका जो कॉन्फिडेंस हम बोलते हैं कैसा होता है, थोड़ा सा लो होता है। तो मुझे सुन के लेंगे या नहीं, ये बातें उसके दिमाग में, उसके जहन में चलती रहती है। सो वेन एवर द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, इट शुड बी काम एंड नॉन क्रिएटिंग, जो जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय होता है वो कैसा होना चाहिए? एम्प्लॉय को कैसा महसूस होना चाहिए? कंफर्टेबल जोन में उसको महसूस होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे सुन के लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. ओके। द यस नेक्स्ट मैम। पॉइंट इज एनालाइज द फैक्ट। Analyze the fact and take decision. Having listened to and heard of all the facts of the case, consulted the appropriate policies and procedures, and look for similar cases that may have set precedent, and the managers has to take decision. Analyze the facts. तो मैनेजर का काम क्या हुआ? सब को सुनने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सब कब डिसीजन दिया जाता है? कि पूरे पुरावे के साथ, सबूत के साथ, कि जब सत्य ही पता चलता है तभी डिसीजन दिया जाता है। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, एम आई ma'am. राइट और नॉट? ओके। यस मैम। पर आजकल क्या चलता है कि सही में वो जितना भी सच बताए जाते हैं, वो झूठ बताए जाते हैं, उसको सच माना जाता है। लेकिन जब जब रियलिटी में वो जब ट्रूथ बाहर आता है, तो बहुत देर हो चुकी है, देर हो चुकी होती है। सो दैट इज द थिंग,
सेम अप्लाई हियर कि मैनेजर को क्या करना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी उसको निकालनी चाहिए, क्या उसको डिसीजन लेना है, उसका डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए, उसका प्रोसीजर, उसका पॉलिसी कि ये उस केस को सुलझाने में ना कि उलझाने में होना चाहिए, उसकी पॉलिसीज और प्रोसीजर कैसे होने कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाए। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Then next point is exit interview. That exit interview is another type of grievance interview. For employees, the exit interview are one of the most and last deep conversational interaction they have with the company. It should be their chance to give the review of their experience and appropriate opportunity that affirms the contribution they have made to the organization. Exit interview it means जब कोई भी employee वो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या वो कंपनी छोड़ने वाला होता है तभी ये इंटरव्यू लिया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये इस इंटरव्यू में वो अपनी अपॉर्चुनिटी या जो उसने एक्सपीरियंस किया ऑर्गेनाइजेशन में उसने क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में बताता है, उसको रिव्यू देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिट इंटरव्यू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay, when both parties focus on this learning, the knowledge sharing goals, the exit interview can help working relations and to the good note. Many times the feedback that employees providing is positive, but when it's not, it gives the employer valuable insight on how to fix it for exiting employees. तो जब भी कोई छोड़ने की बात करता है तो इस तरह से कोई अपना नौकरी छोड़ेगा क्या, कुछ ना कुछ तो वजह होती है कि नहीं, कि फॉर एग्जांपल कुछ वजह होती है कि जहाँ से हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So whenever they share their experience, when they share their knowledge with one another, the relationship should be maintained. So sometimes the feedback is given, sometimes it is positive, and whenever it is not positive, but it gives the valuable insight टू द एम्प्लॉई कि अगर मैंने जैसे आपको अभी बोला कि फीडबैक जब भी हम फीडबैक करते हैं तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो नेगेटिव फीडबैक हो तो हमारे लिए इंसाइट मीन्स कि फॉर एग्जांपल जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमसे देखा जाता है तो वो हमारे लिए इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। तो एम्प्लॉय के लिए भी वैसा ज़रूरी है और जो कंपनी होती है उसके लिए भी इतना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है?